आज हम लोग के मैप डिस्कस करेंगे, ठीक है, करनॉफ मैप, और एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशंस को भी लिखने सीखेंगे। ठीक है, एसओपी मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड पीओएस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ठीक है, सो लेट अस सी हाउ टू draw K map and how to minimize the expression in SOP and POS form. So starting with K map, first of all, what is a K map? In short, we call it K map. It is known as Karnoff map. Okay. It is known as Karnoff map. This is in short we call it K map. Okay, so K map, what is it? K map is used to simplify the Boolean functions. Okay, it is used for simplifying the Boolean functions, and K map structures for 2, 3 and 4 variables. 2, 3 और 4 वेरिएबल के लिए होता है. So what is the structure for 2 variable K map? Let us see that. First one, 2 variable K map. This is the structure for 2 variable K map. Okay, 0, 1, location numbers are 0, 1, 2 and 3, and here we write the symbol 0, 1 and 0, 1. Okay, so 0, this side we have marked with variable A, this side with B. So this 0 denotes A complement and 1 denotes A. Likewise 0 denotes B complement and 1 denotes B. तो ये है 2 वेरिएबल के मैप. ओके, दिस इज द 2 वेरिएबल के मैप. देन नेक्स्ट वन वी हैव 3 वेरिएबल के मैप. ओके, 3 वेरिएबल के मैप. सो हाउ डू वी ड्रॉ फॉर दिस? सी, 3 वेरिएबल के मैप. स्ट्रक्चर यू हैव टू लर्न. स्ट्रक्चर तुम लोग को याद करना होगा. 0, 1, देन 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. ये होगा, देखो स्ट्रक्चर. इधर एक वेरिएबल होगा 0, 1, तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया ए. इधर 2 वेरिएबल होगा, सपोज बी सी. वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं, वी कैन टेक एनी वेरिएबल नेम. सो बी सी मीन्स दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट 0, 0. दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी, दिस इज बी इंटू सी एंड दिस इज बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट. एंड लोकेशन नंबर्स आर 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. So this is a 3 variable K map. Okay, and then we have finally 4 variable K map. Third one, 4 variable K map. So 4 variable K map looks like a 4 into 4 matrix. Variables will also be 4 in number because it is 4 variable. Location number 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. और play position number 0, 1, 2, 3, sorry, 0, 1, 3, 2. Okay, 4, 5, 7, 6, 12, 13, 15, 14. Okay, 8, 9, 11, 10. ये लोकेशन नंबर्स है फॉर 4 वेरिएबल के मैप. तो जैसे 3 वेरिएबल में था, लाइक दैट इन द 4 वेरिएबल ऑल्सो. 0, 0 मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी. दिस वन इज ए इंटू बी and this one is a into b complement. Similarly on the vertical side. ठीक है, और लोकेशन नंबर 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6
उसके बाद 12 13 15 14 देन 8 9 11 10. So this is the structure. So this structure you have to remember before drawing the K map. Okay. So you should know the structure perfectly. Now let us go for SOP reduction of K map. Okay. SOP means sum of products. Okay, sum of products. In short, this is known as SOP. तो इसका रिडक्शन करने के लिए क्या रूल्स को फॉलो करते हैं? ठीक है, सबसे पहले रूल्स तो थोड़ा सा हम ओरली बता देते हैं, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक रूल्स समझ में नहीं आएगा. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, द रूल सेज दैट ग्रुप्स कैन बी मेड ओनली फॉर 2 4 8 and 16 एलिमेंट्स. 2 4 8 और 16. नो अदर कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल. 2 4 8 and 16 ओनली. Okay, remove the redundant groups. Redundant, REDUNTANT. So what is a redundant group and why should we remove it? Such a group whose all elements are used by another group is known as a redundant group. Okay, overlap the groups if possible and then add all the products because it is sum of products. So first of all we write the expression in product form and then we add all the products. These are the basic rules. So let us start with one question. The question is map the function having 4 variables in a K map. Okay, map the functions or reduce the function having 4 variables in a K map, and your function is like this. Question number 1, f of a b c d equals to, now this summation symbol is there. So what does the summation symbol represents? Sum of products. And then what will be the symbol of product of sums? Pi symbol. Okay, so summation of location numbers will be given to you 2 6 10 and 14. Suppose these are the 4 locations given. For this one we have to draw the K map, do the grouping of the location numbers, and then we have to reduce the expression. ठीक है, तो सबसे पहले के मैप ड्रॉ करो. 4 वेरिएबल के मैप है, इसको ड्रॉ कर लिए. 4 कॉलम होगा और 4 रोज होगा. लोकेशन नंबर 0 0 0 1 1 1 1 0, फिर 0 0 0 1 1 1 1 0, फिर 0 1 3 2 4 5 7 6 और 8 9 11 10, ये सबसे 4th रो में, और फिर 12 13 15 14 ये 3rd रो में, और वेरिएबल्स है ए बी सी डी, ये लिख दिए. नाउ लेट अस मार्क द लोकेशंस. ओके, so this structure you have to remember. Okay, you have to learn this structure. 2 6 10 and 14. So we will mark with 1 children. ओके, एसओपी में 1 से मार्क करते हैं, पीओएस में 0 से मार्क करते हैं. तो अब देखो, अब ग्रुप कैसे बनता है ये समझो. ये तो बता दिए कि 2 4 8 और 16 एलिमेंट्स ही होना चाहिए. मीन्स एक ग्रुप में 2 एलिमेंट्स हो सकता है मिनिमम, मैक्सिमम 16 एलिमेंट्स, फिर 4 हो सकता है, 8 हो सकता है. तो ये तो पॉसिबिलिटीज है कि इतना इतना एलिमेंट्स हो सकता है. लेकिन ग्रुप बनाना कैसे चाहिए? सबसे पहले ग्रुप हॉरिजॉन्टली बन सकता है, वर्टिकली बन सकता है, 2 डायरेक्शन हो गया, ओवरलैप कर सकता है. ठीक है, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा तो उसको ओवरलैपिंग ग्रुप बनाते हैं, बोलते हैं. लेकिन डायगोनल नहीं बन सकता है. अगर कहीं देखे हो यूट्यूब में या किसी भी अदर कंसेप्ट्स में कि डायगोनल ग्रुप्स भी पॉसिबल है, सो दैट इज रॉन्ग. डायगोनल ग्रुप्स आर नॉट पॉसिबल, सो दिस इज रॉन्ग. ये डायगोनली ग्रुप नहीं बना सकते हैं. तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है.
ये एक ही ग्रुप बन जाएगा, ऑल आर इन द सेम लाइन, वन वर्टिकल ग्रुप, एंड द ग्रुप विल बी ऑफ 4 एलिमेंट्स। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट लॉजिक, एक और इंपॉर्टेंट लॉजिक है, अगर जो तुम ग्रुप बना रहे हो, मान लो 2-2 एलिमेंट का 2 ग्रुप बन रहा है, ठीक है, और 4 एलिमेंट का एक ही ग्रुप बन रहा है, तो तुम किसको प्रेफरेंस दोगे? 4 एलिमेंट वाला ग्रुप को। एक दो फंडा जो है, लॉजिक जो है, वो ऑन द स्पॉट तुमको डिसाइड करना होगा, वो कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। द नंबर ऑफ ग्रुप्स शुड बी लेस इन नंबर ऑफ ग्रुप्स कम होना चाहिए, एंड द साइज ऑफ द ग्रुप शुड बी लार्जर। लाइक वी आर, जैसे एग्जांपल दिए ना, वी आर मेकिंग 2 ग्रुप्स ऑफ 2 एलिमेंट्स ईच, and it is possible to make one group of 4 elements, so we will prefer to make one group of 4 elements. We will not make 2 groups with 2 elements each. Okay, so larger should be the size of the group and lesser number of groups should be there. And how can we group? Horizontally, vertically, overlapping, but not diagonally, not at all. Okay, तो इसके देखो, तो ये 4 का ग्रुप बन गया, इसको कैसे लिखेंगे? ग्रुप वी विल डिनोट विद G, इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड CD, रो एंड कॉलम। तो ये AB क्या है? 0 0, कॉलम यहाँ पर क्या है? 1 0, तो 0 0 मतलब A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C है 1, ओके, और D है 0, तो D कॉम्प्लीमेंट। ये 2 के लिए हो गया। फिर 6 के लिए देखो, यहाँ से देखना है, रो है 0 1, कॉलम है 1 0, तो 0 1 1 0, जहां 1 है वहां कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाना है या बार नहीं लगाना है, ठीक है। देन 14 1 1 1 0, तो 1 1 मतलब A B C और D कॉम्प्लीमेंट, और 10 है 1 0 1 0, तो 1 0 1 0, ये हुआ। अब डायरेक्टली कॉमन फाइंड कर लो चारों ग्रुप में, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन क्या क्या है देखो, CD कॉम्प्लीमेंट इज कॉमन, C इंटू डी कॉम्प्लीमेंट, देखो C इंटू डी कॉम्प्लीमेंट सब में सेम है, तो यही तुम्हारा आंसर होगा। ओके, एंड दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज सम ऑफ प्रोडक्ट्स। कैसे? देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, A कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट इंटू C इंटू डी कॉम्प्लीमेंट, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है सब, देखो ब्रैकेट में इनक्लोज कर दे रहे हैं, ऑल दीज आर इन प्रोडक्ट फॉर्म, एंड देन वी आर एडिंग देम, सबको ऐड कर दे रहे हैं, तो ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट्स का सम। और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं, खाली कॉमन फाइंड कर लो, ये C इंटू डी कॉम्प्लीमेंट, ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो गया। अब इसके लिए लॉजिक डायग्राम भी बनाने के लिए बोलता है, सो हाउ विल यू ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम? लिखो C और D, 2 लाइन ड्रॉ कर दो, C इंटू डी कॉम्प्लीमेंट, तो डी कॉम्प्लीमेंट हो गया नॉट गेट, और इंटू हो गया एंड गेट, बस ये हो गया आंसर। ओके, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और एग्जाम्पल देखो, दिस वन आई एम रबिंग, वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर को एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मैप द फंक्शन यूजिंग 4 वेरिएबल्स इन अ के मैप when the function is f of abcd equal to summation of locations are 0 1 2 6 8 9 10, 0 1 2 6 8 9 and 10. Okay, so and also draw the corresponding logic circuit. So you have to simplify this expression, this function, using a 4 variable K map, and then draw the resultant logic expression for the simplified expression. So these are the location numbers. Let us mark them. What did I say in the previous question? We have to mark with 1, 0, 1, 2, 6,
8 9 10 मार्क कर दिए। नाउ सी हाउ टू डू द ग्रुपिंग। आई टोल्ड यू ओवरलैपिंग ग्रुप का पॉसिबिलिटी फाइंड करना है। सो हाउ कैन वी फोल्ड द मैप टू मेक ओवरलैपिंग ग्रुप्स फ्रॉम द मिडिल। मीन्स अगर वर्टिकली फोल्ड कर रहे हो तो ये मिडिल हो गया, हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर रहे हो तो ये मिडिल लाइन हो गया। दिस इज द मिडिल लाइन। ओके, नाउ सी द पॉसिबिलिटीज हाउ टू फोल्ड देम। लेट अस फाइंड आउट द पॉसिबिलिटीज। ओके, one possibility is that we can fold from the middle. This one means 0 1 and 8 9. If I fold from the middle, I will show you, demonstrate you with the help of page. Okay, with the help of one page. Suppose this is the page similar to the K map. Okay, now this side two locations are there, in between one fold is there. So suppose I fold the K map from here, from the middle horizontally, then these two locations are overlapping. Okay, so 0 1 and 8 9 will overlap. So these four locations 0 1 8 9 will make one group of 4 elements. After that, now 2 6 and 10 are left out. So these three we cannot make a group over here because in between 14 is missing. Okay, so what can we do? This 2 and 6 can become a group of 2 elements. Okay, we cannot overlap like this, fold like this vertically, because 4 is missing. So 2 will overlap with 0, but 6 will not overlap with 4 because 4 is empty. So we have to make a group of 2 elements only. 2 एलिमेंट का ही ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब रह गया 10, तो वर्टिकली फोल्ड करोगे तो 10 8 से ओवरलैप करेगा, हॉरिजॉन्टली भी फोल्ड करोगे तो 10 2 से ओवरलैप करेगा। तो 2 एलिमेंट का एक और ग्रुप बन रहा है। लेकिन ये भी बताया ना तुम लोग को कि अगर 4 एलिमेंट का ग्रुप बनाना पॉसिबल हो तो 4 का ही बनाएंगे। तो 4 एलिमेंट का पॉसिबिलिटी यहाँ है। कैसे? देखो, ऑल द 4 कॉर्नर्स, आई एम सर्कलिंग इट, इसको सर्कल कर दे रहे हैं। ये चारों कॉर्नर ओवरलैप कर जाएगा। कैसे? देखो, बहुत सिंपल है। ये पेज लिए ना, यहां पर हम मार्क कर देते हैं ऑल द 4 कॉर्नर्स। देखो, ये चारों कॉर्नर मार्क कर दिए हैं। ठीक है, अब इसको फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड किए तो ये दोनों ओवरलैप किया ना, देखते जाओ, ये दोनों ओवरलैप किया। उसके बाद एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये चारों एक प्लेस पे आ जाएगा। तो इससे ऐसे ओवरलैप करके हम लोग चारों कॉर्नर्स का एक ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, देख भी सकते हो तुम लोग। हम उल्टा ओवरलैप करके दिखा देते हैं। देखो, ऐसे किए और ऐसे किए। देखो, 1 दिख रहा होगा, 1 से मार्क किए हैं। इस साइड भी देखो, यहाँ भी 1 दिख रहा है। चारों 1 एक जगह आ जाएगा अगर 2 बार फोल्ड कर दोगे मैप को। तो ऐसे ग्रुप बनेगा। ओके, नाउ सी हाउ टू राइट। नाउ 3 ग्रुप्स आर देयर। ग्रुप 1, let us write the location number also in the bracket. Like group 1 we are taking 4 corners, 0 2 8 and 10। ये चारों को लेते हैं, 0 2 8 and 10। ठीक है, तो 0 का लिखो, 0 0 0 0, सारा 0 है। तो a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट इंटू c कॉम्प्लीमेंट इंटू d कॉम्प्लीमेंट, देन 2 0 0 1 0 0 0 1 0, then 8 1 0 0 0। So a b complement c complement d complement, and then 10 1 0 1 0। So a into b complement c into d complement। ये चारों का कॉमन, तो कॉमन वेरिएबल्स है b complement into d complement, ये कॉमन है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, इसको मान लेते हैं 0 1 और 8 9, 0 1 8 9। तो 0 में तो a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट d कॉम्प्लीमेंट, 1 होगा 0 0 0 1, मतलब 3 0 है। a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट d, देन 8 1 0 0 0,
तो ए होगा और बाकी सब कॉम्प्लीमेंट बी सी डी कॉम्प्लीमेंट, एंड देन 9 1 0 0 1, तो 1 बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी। फिर इन चारों में कॉमन, तो यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट चारों में कॉमन है और सी कॉम्प्लीमेंट भी चारों में कॉमन है, तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। और फिर ग्रुप नंबर 3 जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है 2 और 6, तो 2 का होगा 0 0 1 0, तो 0 0 1 0, ठीक है। 6 का होगा 0 1 1 0 0 1 1 0। इसमें 3 वेरिएबल कॉमन मिलेगा, तो देखो एक बी कॉम्प्लीमेंट, और सॉरी उल्टा लिख दिए, 0 1 1 0 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, बी विदाउट कॉम्प्लीमेंट होगा, फिर सी होगा, फिर डी विद कॉम्प्लीमेंट होगा, तो कॉमन मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट सी और डी कॉम्प्लीमेंट, ये बना। और फिर फाइनल ग्रुप तीनों का एक्सप्रेशन को ऐड कर देंगे, तो पहला है बी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू सी इंटू डी कॉम्प्लीमेंट, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया है, ठीक है। सो बस इतना, लेट इट बी दिस मच ओनली। देन लॉजिक डायग्राम, यहाँ 4 वेरिएबल है, तो ए बी सी डी चारों को लिख दो, एक एक लाइन ड्रॉ कर दो। पहला है बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट गेट इंटू डी कॉम्प्लीमेंट, और दोनों इंटू होगा एंड गेट से। देन सेकंड है बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ। और फिर तीसरा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू सी इंटू डी कॉम्प्लीमेंट, और फिर तीनों को ऐड करना है, तो ऐड किस गेट से किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ और गेट। तो ये होगा फाइनल एक्सप्रेशन का लॉजिक डायग्राम, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में ओवरलैपिंग ग्रुप्स का भी जिक्र हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखो एक और क्वेश्चन क्विकली बता देते हैं। एक 3 वेरिएबल के मैप का क्वेश्चन आया है। देखो क्वेश्चन है ड्रॉ के मैप फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ ए बी सी। तो 3 वेरिएबल का हो गया, इक्वल्स टू समेशन ऑफ 0 1 2 4 6 एंड रिड्यूस इट यूजिंग द के मैप। तो 3 वेरिएबल का ऐसी को ट्राई कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन अभी बताएं, एफ ऑफ ए बी सी वन मिनट, ए बी सी इक्वल टू समेशन ऑफ 0 1 2 4 6 0 1 2 4 6। ये है 3 वेरिएबल का के मैप। तो इसको ड्रॉ करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं।
देखो ये 3 वेरिएबल का के मैप हो गया, ठीक है। इसमें लोकेशन नंबर्स को मार्क कर दो सबसे पहले। जीरो, 1, 2, 4, 6। तो देखो इसमें भी ऑल द 4 कॉर्नर्स आर अवेलेबल। तो इसको भी फोल्ड करोगे तो चारों कॉर्नर ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। फिर एक एलिमेंट बच गया 1, तो 1 किसी के साथ ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि 5 भी एम्प्टी है और इधर 3 भी एम्प्टी है। तो वर्टिकली भी फोल्ड करोगे तो 3 खाली है और हॉरिजॉन्टली भी फोल्ड करोगे तो 5 खाली है। सो वी विल हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ 2 एलिमेंट्स ओनली, 0 एंड 1। तो ऐसे ग्रुपिंग होता है। अब इसका हम लोग ग्रुप को लिख सकते हैं। लेट अस राइट द ग्रुप नंबर 1, ऑल द 4 कॉर्नर, सपोज 0, 2, 4 एंड 6। तो क्या होगा 0 का 000 मीन्स A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट। 2 का होगा 0, 1, 0। 4 का होगा 1, 0, 0 और 6 का होगा 1, 1, 0। तो 1 का मतलब A, फिर दूसरा साइड भी 1, 0 है, तो पहला 1 होगा B और 0 होगा C कॉम्प्लीमेंट। तो ये तीनों का कॉमन वेरिएबल आएगा, चारों एक्सप्रेशन में से कॉमन आएगा केवल C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। केवल C कॉम्प्लीमेंट कॉमन आएगा। और दूसरा ग्रुप हम लोग का क्या है 0 और 1, दिस इज आवर सेकंड ग्रुप। तो 0 इज, देखो इधर 0 है ना, तो A कॉम्प्लीमेंट, इधर भी दोनों 0 है तो B कॉम्प्लीमेंट इंटू C कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट इंटू C कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। 1 के लिए कैसे है, दिस इज 0, दिस इज 0, 1। तो A कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट इंटू C। इसका कॉमन क्या आएगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट। फाइनल ग्रुप क्या होगा, C कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट। और फाइनल ग्रुप का लॉजिक डायग्राम ऐसे लिखो, ABC, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करो। पहला है C कॉम्प्लीमेंट, तो ये नॉट गेट बना दो। फिर दूसरा है A कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर बाकी दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड होता है और गेट से। तो ये तुम्हारा लॉजिक डायग्राम हो गया। तो लाइक दिस यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी के मैप एंड राइट द SOP expression. So next video I will make for POS expression. Okay. So this much you try to understand and comment how was the video. If you are able to understand, subscribe it. And there is lot of importance of K-map in the board exam because minimum 15 marks questions will come from K-map and maximum it can go up to 20 marks also. So you have to practice a lot. So next video I will upload for POS reduction using K-map. Okay, thank you.